Go. Hello. Yes, Rohit. Yes, ma'am, you can start. Yes, thank you. Namaskar once again. A very good afternoon from all the Swayambhus senior present here to all the Swayambhus and the viewers out there. We have our guest who is going to talk about his kind of seniorism. Let us all welcome Shri Avinash Chand Tyagi ji. He is a water professional and an ardent advocate of multidisciplinary collaboration for solving complex development challenges, in continuing dialogue among various stakeholders and community participation in the water sector. He has served the water sector for 44 years in various capacities. His biggest regret is lack of knowledge of Sanskrit as a language. He is a BE from IIT Roorkee and ME from IIT Delhi. Mr. Tyagi is former Commissioner, Policy and Planning from the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India. He was also the former Secretary General for International Commission on Irrigation and Drainage. He was also the former Director, Water and Climate, World Meteorological Organization, Geneva, and former Regional Council member of GWP South Asia. At the World Meteorological Organization, he has developed an intimate knowledge of issues related to water resources management in developing countries all around the world. So I welcome our guest, Avinash ji, once again, and request our host for the day, Shri Anil Garg, to please take over. Over to you, Anil ji. Namaskar. नमस्कार. वेलकम टू यू ऑल स्वयंभूस. पिछले बार का जो हमने एपिसोड किया था उसके बाद हमको बड़ा फीडबैक आया कि जो हंसी से शुरू किया था वो बहुत अच्छा था. तो आज मैं एक अपनी छोटी सी कविता से शुरू करना चाहता हूँ. मैं जिद पे अड़ा था कि खुशियां आए. मैं जिद पे अड़ा था कि खुशियां आए. खुशियों ने कहला भेजा, आप मुस्कुराए तो हम आए. खुशियों ने कहला भेजा, आप मुस्कुराए तो हम आए. बेहतर यही होगा कि आप सब भी अब अपनी जिद छोड़ दें, खुल के मुस्कुराएं और खुशियों को आने का मौका दें. बहुत खूब. तो सर, today we are going to start discussing something which is very essential for us. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा. So we thought it will be the best to get an expert in water, Mr. Avinash Chand Tyagi, to talk to us about पानी. So त्यागी जी, नमस्कार. नमस्कार. आपका स्वयंभू सीनियर में स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. तो सर जरा अपनी जर्नी आप थोड़ी सी बताएं. धन्यवाद अनिल जी. आपने शुरू किया पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो मैं जरा इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा. उसके बाद आगे की बातें करेंगे. पानी का रंग तो कोई नहीं होता और ना ही उसका टेस्ट होता है और ना ही उसमें कोई खुशबू होती है, लेकिन वो फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो हमें पानी से सबसे पहले यही सीखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम टेस्ट भी हो, हमारा कलर भी हो और देखने में भी सुंदर लगते हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं. और वैसे अगर जो हम पानी के रंग की बात करें तो पानी के 4 रंग होते हैं. पहला ग्रीन वाटर कहते हैं, जो रेन आती है धरती पर, और जो पानी ये हमारी प्रकृति उसको अपने अंदर सींच लेती है और फिर उसको इवोपरेट कर देती है, जिसको इवोपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं. तो वो तो ग्रीन वाटर कहलाता है. इसी तरह जो पानी जमीन पे गिर के और फिर वो या तो ग्राउंड वाटर में चला जाए या रिवर्स में चला जाए या किसी भी वाटर बॉडी में चला जाए, उसको ब्लू वाटर कहते हैं.
और जो पानी हम टॉयलेट्स में फ्लश कर देते हैं या नहाने में चला जाता है, नहा के जो पानी निकलता है, या एग्रीकल्चर में भी जो वाटर निकलता है वो ग्रे वाटर होता है। क्यों? उसको हम सीधा यूज नहीं कर सकते। और चौथा होता है ब्लैक वाटर, काला पानी, और वो पानी है जो हमारी सीवेज सिस्टम में रहता है। तो 4 रंग होते हैं पानी के, और हमें इन चारों के ऊपर बहुत ही ध्यान से हमें इनको मैनेज करना जरूरी होता है। Very good. So green, blue, black, ग्रे and ग्रे Very good. ग्रे एंड ब्लैक, यस। So, sir, before we get into water in details, I thought let us first of all discuss your journey as to how do you feel from a very senior government position coming into senior citizenship. Let us can you throw some light on how did you think that now you are going to be a senior citizen? Should you do something as a pre-planning? You being an engineer, I'm sure you will always start everything with a plan and then execution. वेल, जहां तक प्लानिंग की बात है, ये मैं आपको बताऊं कि जैसा हम प्लान करते हैं जिंदगी हमें वैसा देती नहीं है, और उसमें हमें फ्लेक्सिबल होने की बहुत जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि सीनियर सिटीजनशिप में हम आए, लेकिन ये जो सीनियर सिटीजनशिप में, सीनियरिज्म में हमने प्रवेश किया है अब, इसकी जर्नी मेरे ख्याल 15-16 साल पहले शुरू हो गई थी। मैं 51 साल का था तभी मैंने गवर्नमेंट जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। मैं मंत्रालय में काम करता था, जल मंत्रालय, उस समय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री कहलाती थी, और मैंने वहां से रिटायरमेंट लिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट एज यू कैन कॉल इट। और फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो डेस्टिनी ने मुझे यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां भिजवा दिया। वहां पर भी अभी मेरा समय मतलब कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उसके पूरा होने के 1 साल पहले ही, 9 साल में वहां पे काम करता रहा, उसके 1 साल पूरा होने से पहले ही हमने कहा कि नहीं, अब वापस देश चलना चाहिए। और देश में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत थी कि एक उनको इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज जिसे बोलते हैं, उनको एक सेक्रेटरी जनरल, चीफ ऑफिसर की जरूरत थी। तो हम यहाँ पर फिर एज सेक्रेटरी जनरल ICID आ गए। तो हम हमेशा मतलब पहले से ही तैयार रहे हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और जहां तक अब पिछले 2 साल से जब हम रिटायरमेंट में पूरी तरह से आए, हम जब बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम बस खाट पे बैठे रहते हैं और करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबल टाइम बाउंड कमिटमेंट से अब हम निवृत्त हो चुके हैं, बस इतना ही है। बट वैसे प्रोफेशन में तो हम पहले से हैं। सबसे बड़ी जो जरूरत होती है रिटायरमेंट से पहले प्लान करने के लिए, वो इसलिए होती है कि रिटायरमेंट के बाद जो पीरियड होता है वो बहुत अनसर्टेन पीरियड होता है। जब भी आप किसी चीज के लिए प्लान करते हो तो आप एक पीरियड के लिए प्लान करते हो, 5 साल के लिए, 7 साल, 10 साल के लिए। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जो है वो कितनी लंबी होनी है, भगवान आपको कितनी बड़ी लंबी उम्र देगा जिसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें, आपको वो नहीं पता। फिर आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश ही होने वाली हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटेंस कम हो जाती है, तो नेचुरली यू कैन नॉट अर्न इवन इफ यू वांट टू अर्न। और तीसरा उसके है कि आपकी हेल्थ जो है वो भी धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती है। तो इसलिए हमें जब हम रिटायरमेंट के करीब आते हैं तो हमें 4 तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। पहला फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, एंड फोर्थ जनरली जो मैं मानता हूं टेक्नोलॉजिकली आपको अपने आप को तैयार रहना चाहिए। Sir, I can understand the first 3, that is emotional and then financial,
you being a technical person, why do you say technically? I don't understand that. No, I didn't say technically. I said technologically. Okay, technologically. You know, I'm the sorry. technology is changing so fast that unless you are up to date with technology, you will not be able to contribute to the society or to the economic development basically. जी, हमारे साथ क्या रहा कि हम हायर पोजीशन में पिछले 15 साल से जब से रियली टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग सिचुएशन में आ गई है, तब से हम काफी हाई पोजीशन में रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें कभी किसी ने टेक्निकली कोई टेक्नोलॉजिकली कोई काम करने नहीं दिया। ठीक है, हम इंटरनेट सर्फिंग करना जानते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग भी जानते हैं, वो सब तो कर लेते हैं, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये गैजेट्स जो होते हैं, इनको कैसे ऑपरेट करना है, ये बड़ी मुश्किल होती है। मैं एक छोटा सा आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। वो ये कि मुझे अपने प्रिंटर पे जो मैंने घर पे रखा हुआ है, उसकी जो इंक जेट होता है, उसका इंक जो होता है, वो चेंज करना नहीं आता था। कोई नहीं, जब तक हम ऑफिस में थे तो नेचुरली हमारे जो सबऑर्डिनेट थे वो आके हमारे प्रिंटर का चेंज कर देते थे। फिर उसके बाद रिटायरमेंट भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। हम जब हमारा खत्म हुआ उसका इंकजेट का इंक, तो हमने फोन किया, भाई हमें ऐसे ऐसे प्रिंटर की रिफिल चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी इतने मिल जाएंगे। मैंने कहा क्या आप किसी को भेज सकते हो? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल भेज सकते हैं। तो उन्होंने भेज के हमारी चेंज करा दी। अब मुश्किल तब हुई जब कोरोना आ गया। उस समय बाकी सब ठीक था, लेकिन लोगों से हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम उनको यहाँ बुला नहीं सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि अब हमारे पास रिफिल तो है, लेकिन अब इसको हम लगाएं कैसे, ये बड़ा मुश्किल है। तब हमें ज्ञात हुआ कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए बेसिकली। और कई भी चीजें हैं, थोड़ा सा हमारे साथ यह भी एक प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सिचुएशन है कि हमारे साथ हमारे बच्चे नहीं हैं, तो बिकॉज अगर वो होते तो अदरवाइज बच्चे हेल्प करते हैं। हाँ, बच्चे आजकल तो हमारे पोते पोतियां, हमारा Children know पोता भी better कर than us. सकता है। Children know better than us. Yes, exactly. तो ये एक प्रॉब्लम रही है। So sir, after you got you actually became a senior citizen. Now how do you engage yourself? What did you do? Well, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे कि हम प्रोडक्टिव रह सके और उसके साथ साथ दूसरों के ऊपर बर्डन ना बने बेसिकली। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हेल्दी रहें। बिल्कुल। तो जैसा बुद्धा ने भी कहा, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी इज नॉट टू मॉर्न ऑफ द पास्ट और वरी अबाउट द फ्यूचर, बट टू लिव इन द प्रेजेंट। सो हम कोशिश करते हैं कि हम तो हम कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट में रहें। अब उसके लिए ये भी जरूरी है कि अपना समय जो है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो वैसे तो हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत समय उसमें लग जाता है, लेकिन कुछ हॉबीज भी हैं रही हमारी। जैसे हम जब तक स्कूल कॉलेज में थे तब तक अच्छी ड्राइंग स्केचिंग वगैरह कर लेते थे। उस समय पेंटिंग भी कर लेते थे, हालांकि उस समय कलर्स वगैरह के लिए पैसे इतने नहीं मिलते थे, पर फिर भी पेंटिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत बना लिया करते थे। At that time parents used to think कि ये सब बकवास है, सब बिल्कुल इंजीनियरिंग करो बेटा। हाँ, इंजीनियरिंग करो, तो उसमें लगे रहते थे। लेकिन फिर हमें जब हम नौकरी में आ गए और टेक्निकल चीजों में, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि हमें अपने आप को टेक्निकली ज्यादा अपडेट रखने की जरूरत है, और ये हमें एक तरह से वेस्ट लगने लगा, वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास समय नहीं है, हम इस हॉबी को बाद में परस्यू करेंगे। वो बाद में करते करते वो रिटायरमेंट आ गई। अब रिटायरमेंट के बाद हमने बहुत बढ़िया, सिंस फाइनेंशियली देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम, तो हमने सब पेंट शेंट वेल सब खरीदा और हम करना शुरू किया। लेकिन फिर हमने क्या पाया कि
अब हमारे पास उतना पेशेंस नहीं रहा है कि हम 3-4 घंटे बैठ के पेंटिंग कर सकें. That is what the professional life has done to us. That is what the professional life had turned me into. Correct. Now I am more result oriented within a very small time. Basically, I should be able to bring out more in less time. So ये हमें एक थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकली लगा कि ये वेस्ट है. हालांकि अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है और वो मेरे साथ और ज्यादा. दूसरा जो मैंने पहले तो कहा कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद हमें फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए. जी. फैमिली में since we means me and my wife are alone here, both my children are abroad, so मुझे अब ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है. स्पेशली जब मैं जिनेवा में था तो बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल रहता था, तो उस समय हम बहुत कम समय निकाल पाते थे जब हम रियली आपस में बात कर सके. मतलब बात तो करते थे बट एंजॉय नहीं कर पाते थे. जैसे एक दिन हम लेजरली एंजॉय करें, ऐसा नहीं होता था कभी. तो वो चीज मैंने सोचा कि अब जो है 4-5 घंटे अगर जो मैं अपनी पेंटिंग में लग जाऊंगा तो फिर उनको समय नहीं दे पाऊंगा. तो वो भी एक हॉबी है. हाँ, वो मैंने थोड़ा उसको कम किया बेसिकली. तो अब लेकिन जैसे मैंने कहा आगे आगे हम इसको जारी रखेंगे, बट अभी शुरू की मेरे ख्याल सिचुएशन ऐसी है, इसमें एडजस्ट करने की जरूरत है. थोड़ा सा पीछे जरा आपको लेकर जाना चाहता हूँ. यू वर टॉकिंग अबाउट getting some engagements where you can actually do some work, continue doing some small work, or whatever time you can depend. My personal experience with self as well as some of the colleagues that I meet is that to actually decide on a professional engagement post retirement, right, is more difficult than to decide on what job offer to take when you actually pass from the college. बिल्कुल ठीक कहा आपने. So will you throw some light on that, especially since you come from a government job? So maybe you will have a different experience than what others have. नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. मेरा अपना पहला जो एम रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन नहीं लूंगा. ओके. क्योंकि मैं अपनी कमियां जानता हूं कि जब मैं किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं तो फिर मैं अपना 100% उसमें देता हूं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर पर्सनल फ्रंट जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, और अब मैं वो नहीं करना चाहता. तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि एक पार्ट टाइम वर्क किया जाए, और पार्ट टाइम में भी मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं जाऊं रेगुलरली जाऊं, और उनका कोई कंसल्टेंसी जॉब किया जा सकता है बेसिकली. ओके. जनरली होता ही है कि जो टेक्निकल और हाई पोजीशन से लोग रिटायर होते हैं, उनको कई बार जो कंपनीज है वो इसलिए एंगेज करती हैं, कहती तो उनको कंसल्टेंट हैं वो, लेकिन उनको एंगेज इसलिए किया जाता है कि जाके हमें ये जॉब दिलवा दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या हमारी ये पेमेंट निकलवा दो. So more as a PR agent. More as a PR agent basically. और हर एक आदमी का अपना अपना एक नेचर होता है. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टेबल के इस तरफ बैठे होते हैं तो सिचुएशन अलग होती है, और टेबल के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है. तो जो हमारे जूनियर कोलीग्स अब मान लीजिए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में होंगे, हम अगर उनकी टेबल के दूसरी तरफ जाके बैठेंगे तो बिकॉज दे वर कोलीग्स, दे वर नॉट फ्रेंड्स बेसिकली. अब आप मेरे फ्रेंड रहे हैं तो आपसे तो मैं कभी भी कैसे ही बात कर सकता हूँ, लेकिन कोलीग से एज ए कोलीग ही बात कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ऑड हो जाता है. तो इसलिए मेरे ख्याल हमें, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें ऐसी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए जहां हमें अपने को बिलिटल हुआ महसूस करना पड़े, अनलेस ऑफ कोर्स फाइनेंशियली यू आर रियली नीडिंग इट बेसिकली. अदरवाइज अगर आप टाइम पास करने के लिए करते हैं तो उस तरह की जॉब नहीं लेनी चाहिए. तो मैंने तो तकरीबन यही देखा है कि हम अगर जो जैसे मैं
2-3 NGOs के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे से थोड़ा बहुत पूछते रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना दिया, कोई अप्रोच पेपर लिख दिया। तो जैसे इंडिया वाटर पार्टनरशिप है, एंड पॉवर्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर यूथ है, वो चाहते थे कि यंग लोगों को पानी वाटर सेक्टर में इंटर्न्स की ट्रेनिंग वगैरह कैसे दिलवाई जाए, तो उसका हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ इंडिया वाटर पार्टनरशिप और सेंटर फॉर यूथ के साथ। तो हम उनको असिस्ट करते रहते हैं बेसिकली। सर, जी, you were talking about knowing small things which were not used during the time of your professional career. जी, जी, So now you have a problem in changing a cartridge for your printer, etc. right, You also told me that the learning should never stop. yeah. So what do you do for keep learning? वेल जनरली आजकल आप देखते हैं कि अच्छा कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज जो हो गई है वो ये कि जितने भी इंटरनेशनल मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स हैं वो इंटरनेट वेबिनार के थ्रू आने लगी हैं। अब पहले अगर सिचुएशन होती तो दिल्ली में मान लीजिए कोई हमारी मिनिस्ट्री कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करती, तो मैं वहां जाने से पहले 2 बार सोचता कि लगता अरे शाम को मैं जब आऊंगा तो मेरे को ड्राइवर अवेलेबल होगा या नहीं होगा, मेरे को टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो मैं अपने आप को जो वेबिनार चलते रहते हैं उनसे अपडेट रखता हूँ। दूसरा मैं पुस्तक भी पढ़ता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट रहा है, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रहा है और थोड़ा सा ये संसार कैसे बना, समय कैसे बना। तो मैंने जैसे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग पढ़े, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिसेंट लेटेस्ट मेरा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन, ऑल्दो वेरी ड्रैब बुक बट very interesting from the point of view of how things really started, basically how things have changed over the See, you told us in one very first interaction that one of your regret is that you did not learn Sanskrit. Yeah, actually क्या है कि हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जब हम थे तो हमें संस्कृत पढ़ाई गई थी और हम उसमें काफी मतलब पूरे मार्क्स लेके पास हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। और अब हम देखते हैं कि हमारे जो वेद और पुराण हैं उनमें जो नॉलेज है वो नॉलेज, उस नॉलेज को लेके ही बहुत सारे साइंटिस्ट आगे बढ़े हैं, चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली। कुछ साइंटिस्ट ने तो इस चीज को, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन ने इस चीज को स्वीकार किया है कि उनको कुछ आइडियाज हमारे वेदों से भी मिले हैं। और भी बहुत से साइंटिस्ट आप जान सकते हैं। तो अब कई बार इच्छा होती है कि ये जाने की ओरिजिनल में क्या लिखा, क्योंकि जब ट्रांसलेशन होता है तो वो हमेशा एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांसलेटर होता है हमेशा। तो उसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल हम रामायण है या महाभारत का सीरियल आते हैं, ये सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं उस समय की। जी। थोड़ा हम जानना चाहते हैं, हालांकि पता नहीं कि उस लेवल तक की संस्कृत में अब हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे समय के मुताबिक, बट कोशिश ये रहेगी कि संस्कृत सीखी जाए और फिर वेद वगैरह में वो चीज पढ़ी जाए बेसिकली। So now let us come to your original subject, water. Okay. So you started with saying water has got 4 colors, so we understood it has got 4 colors. Yeah, that's right. Now, of course, I know it's a very vast subject, and I remember you telling me that it is a very complex subject. Yes. So what I would like you to help our viewers to tell them in brief as to how they can understand the importance of water. Right. What is that you are still involved in helping society at large, or maybe your own cooperative society where you live, RWA, etc. And then we might have some specific questions on what I have received from some of the viewers, which I'll ask you in the due course of time. So first of all, in a layman language,
why do you say water is a complex subject? And when you say I'm a water expert, so what is that you are actually doing? I mean, या बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा. देखा जाए तो water is everybody's business. mhm. I mean, you deal with water, I deal with water, even a rickshaw wala deals with water, or a farmer deals with water. Mhm. Just now you drank a sip of Yes. water. So you I'll are the have user another. basically. So user, being a user, you are an equal stakeholder in how the water is managed basically. Mhm. Now we know that availability of water is really becoming more scarce. Now when we call scarce, because the amount of rainfall which is coming, which is the part of the whole hydrological cycle, जिससे कि हमारा समुद्र पानी जो नमकीन पानी है वो इवापोरेट होके वो बरसात के उसमें आता है, बरसात से वो फिर नदियों में पहुंच जाता है और इस तरह की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती रहती है. तो इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो पानी गिर रहा है उसका अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा है. इवन इन क्लाइमेट चेंज दैट अमाउंट इज नॉट गोइंग टू चेंज बेसिकली. लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है. दूसरा, हमारी जो डिमांड्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो बढ़ रही हैं. पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर वो बढ़ रहा है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो. तो इसलिए जो हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती चली जा रही है. दूसरा, क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने पहले कहा, क्लाइमेट चेंज वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर गिर रहा है उसको चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो कितने दिनों में गिर रहा है, वो कहाँ गिर रहा है, उसमें बड़ा फर्क पड़ रहा है. आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह बाढ़ आ रही है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हैज रियली इंक्रीज्ड. टोटल नंबर ऑफ मॉनसून डेज, एक तो वैसे ही हमारे देश में कुल 3-4 महीने की मानसून होती है, उसमें पानी गिरता है. उसमें से भी किसी एक सिटी को अगर ले लें तो ऑन एन एवरेज उसमें 10 दिन टोटल बरसात होती है बेसिकली. उस 10 दिन में भी अगर जो हम ले तो टोटल हमारी 15-16 घंटे ही बरसात होती है टोटल. उस 15-16 घंटे में सारा पानी नीचे गिर जाता है. अब अगर इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है किसी भी चीज का, चाहे वो नेचुरल रिवर ड्रेनेज सिस्टम कह लीजिए या आप अर्बन ड्रेनेज सिस्टम कह लीजिए, उसकी एक कैपेसिटी होती है. अब अगर जो इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा पानी एक कम समय में गिर गया है, तो वो वाटर जो है वो आउटफ्लो उसके क्योंकि लिमिटेड है तो वो वहां पे फ्लडिंग कर देता है. तो हमने देखा है कि almost every city gets flooded every year basically now. Every time you are seeing this. तो इसलिए अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम इस सब का सॉल्यूशन कैसे करें, कि हम जैसे आपने कहा कि हम जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोगों ने कहा कि भाई पानी जब तक काफी था तो एक ये सोच थी कि पानी की कोई वैल्यू नहीं है बेसिकली, इट इज फ्रीली अवेलेबल बेसिकली. बट एक्चुअली इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल. किस पानी को जब हम कहीं पे भी अवेलेबल कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी और कुछ ना कुछ मनी उसमें जरूर लगा होता है. क्योंकि अगर आप अपने घर में भी अगर आपका नलका जो है वो दिन में कुल 2 घंटे आ रहा है पानी, तो आप बाकी 22 घंटे उस पानी को जब आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे करेंगे, उसकी स्टोरेज करेंगे. तो आप उसके लिए या तो बाल्टियां खरीद लेंगे या कोई छोटा मोटा टैंक बनाएंगे. तो उस सब में टैंक बनाने में उसमें एनर्जी लगेगी, पैसा लगेगा. तो ऐसे ही जब हम वाटर किसी को अवेलेबल कराते हैं, मान लीजिए वो खेती के लिए है, चाहे वो बिजनेस के लिए है, चाहे पीने के लिए है, तो वो पानी अवेलेबल कराने के लिए उसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है. और जहां आप जानते हैं जहां भी पैसा की बात होती है तो हमारी प्रायोरिटीज को देखना पड़ता है कि पहले एजुकेशन में डाला जाए ये पैसा, या डिफेंस में डाला जाए, या इसको पानी में डाला जाए. तो पानी ज्यादातर अभी तक जो था वो लास्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी बेसिकली. नोबडी यूज्ड टू बॉदर क्योंकि अवेलेबल हुआ करता था बेसिकली. लेकिन अब ऐसा नहीं है. तो अब कंपटीशन जो है रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा हो गया है बेसिकली. दूसरी क्या है, इस कमी होने की वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है. आपने भी देखा होगा
कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट सालों से चल रहा है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है आज तक। कोर्ट के बार बार हम फिर से कोर्ट पे चले जाते हैं। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्री नहीं करती है, कोई भी डिसीजन अगर दिया जाता है तो ट्रिब्यूनल जैसे उसका एग्रीमेंट कराते हैं, लेकिन फिर उसको माना नहीं जाता है। तो ये सब देखते हुए हम देखते हैं कि वाटर जो है वो सबको ही उसमें अपना योगदान करना पड़ेगा, चाहे वो इंटेलेक्चुअल योगदान हो, चाहे वो सोशल योगदान हो, चाहे वो मॉनेटरी योगदान हो। तो बिकॉज इट इज एवरीबॉडीज बिजनेस, तो वी शुड नो अबाउट इट मोर, एंड बिकॉज एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आएंगे जब तक उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए हमें वो बहुत जरूरी है। पहले ये काम तो इंजीनियर्स करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो खाली इंजीनियर्स के करने से काम नहीं चलेगा, अब सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। So the moment you say that everybody has to participate, then I think whatever you told just now, there has to be a proper awareness program for this so that people understand what is the importance. I mean, see today we say, oh, पेट्रोल का कल शॉर्टेज हो जाएगा तो पानी से गाड़ी चलने लगेगी, तो पानी की एक और यूसेज निकल आई तो पानी तो फिर और कम हो जाएगा. So I think can you throw some light on what kind of awareness programs are being designed or they have started for this? Yes, actually सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए। बेसिकली मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, मैं पानी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसके मैनेजमेंट में। बेसिकली सबसे पहले हम अपनी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्योंकि स्पेशली भारत में पर कैपिटा, दिल्ली जैसी सिटी है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, चलिए 220 लीटर पर पर्सन पर डे हम यूज करते हैं पानी, जबकि वर्ल्ड वाइड एवरेज इज 120 to 140। अब हम इतना क्यों यूज करते हैं? Almost 40% more. एग्जैक्टली। नाउ तो ये क्यों यूज हो रहा है? कुछ तो एक सबसे पहले जो रीजन मैं बताऊंगा, जिसके लिए मैं या मेरे जैसे एक्सपर्ट्स या वाटर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं, कि हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो पाइपलाइंस हैं वो लीक कर रही हैं। वो कुछ भी रीजन हो, लेकिन वो लीक कर रही हैं, या कहीं पे नलके खुले चल रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में। लेकिन उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी एज ए सिटीजन है टू रिड्यूस दैट वेस्टेज। बेसिकली तो हमें वेस्टेज को बहुत रिड्यूस करना जरूरी होता है। वो कैसे किया जाए? हम वाटर को कंजर्व करें। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा जब शेव करता है, बच्चा टूथब्रश कर रहा है या बड़ा शेव कर रहा है, तो उनको आदत होती है कि नल चलता रहेगा और वो शेव का अपना चालू रखेंगे। तो 10 मिनट जो है आपका पानी कंटिन्यूअसली चल रहा है। बहुत कम होते हैं लोग जो है एक मग में पानी लेके उसमें रख देते हैं और उससे फिर अपना शेविंग करते रहे। बहुत कम होता है ऐसे ही। So very simple, you will see wherever you now most of the people have a RO fitted in the house. Exactly. When they are filling a bottle from the tap, yeah, and if they have to fill 2 bottles, so the first bottle, then they will remove, put the second, and the water will keep flowing. Yes. But when you fill the same bottles from the RO, yes, then you press the tap only for the time till the time the bottle is full. Correct. Then you stop it, then you fill the other one. Bilkul. So I think the same thing we should apply to the normal usage of water also. But bilkul. one thing I can see even in our society, people are actually now getting rid of the bathtubs. Originally, when the society was made, every house had in the master bedroom, in the bathroom, they had a bathtub. Right. Now people are getting rid of that bathtub and making it plain because they feel उतना पानी नहीं होता, भरेंगे कभी या क्या करेंगे, पानी वेस्ट भी होता है, फिर वो हर एक के बस की बाथटब में डेली नहाना है भी नहीं. The way we are built. Yes, so I think something is happening, but probably an awareness program at the grassroots level may help.
हाँ, नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब जैसे एक मैं छोटा सा कल ही एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम एक रेस्टोरेंट गए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अनलॉक हैज स्टार्टेड कि हम कल रेस्टोरेंट गए। तो वहां पे मैं नाम भी ले लेता हूँ, ओम स्वीट हाउस। तो उन्होंने बहुत अच्छा पोस्टर लगाया हुआ है कि वी सर्व ओनली हाफ ग्लास ऑफ वाटर। वेरी गुड। Now, when the guests are coming, they don't serve full glass of water, right? पोस्टर लगा, बहुत अच्छी बात। Oh, that's really good. I was really मैंने उसके फोटो वगैरह लिया। लेकिन जब हम टेबल पे पहुंचे तो वो पूरा पूरा गिलास आया। तो मैंने फिर मैनेजर से निकलते हुए बात की कि कहते हैं साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन के बाद ये नए वेटर्स आए हैं तो अभी तक ट्रेन नहीं हो पाए। तो जो आप कह रहे थे कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो है ये कंटिन्यूअसली देने की बहुत जरूरत है हमें बेसिकली। इवन इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे वो गुड़गांव की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे वो पटना की हो, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो दे हैव टू बी ट्रेन्ड इनटू द न्यू टेक्नोलॉजीज। बेसिकली दे हैव टू बी ट्रेन्ड अबाउट हाउ दे कैन डिजाइन बेटर हाउसेस बेसिकली। So I think it is important that हम अपने वाटर की कंजम्पशन को कम करें। एक तरीका और है जिसके मैं बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन उसको मैं फ्लैग कर रहा हूं कि हमें अपने वाटर फुटप्रिंट्स कम करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बाद में कार्बन फुटप्रिंट आई न्यू, व्हाट इज वाटर फुटप्रिंट? मैं थोड़ा बाद में आता हूं, लेकिन लेट मी जस्ट टॉक अबाउट 3 R's। सबसे पहले तो हमने कहा कि रिड्यूस करना चाहिए अपने वाटर कंजम्पशन को। फिर दूसरा है हमें रीयूज भी करना चाहिए बेसिकली। जैसे हमारी किचन से अगर जो पानी निकला है तो हम अगर हमारे पास गार्डन है या हमारे पास गमले भी हैं तो उस पानी को हम गमलों में पानी देने के लिए काम में ला सकें। तो इस तरह के हमें रीयूज भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीवेज का पानी होता है उसको फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद एग्रीकल्चर में भी डाला जा सकता है with certain precautions of course, वो आप उसमें यूज किया जाता है। थर्ड मैं कह रहा हूँ रिसाइकलिंग, कि हम वाटर जो हमारा निकला, जो सिटीज से निकला, उसको फिर से क्लीन करें। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद हम उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज कर सकें। So reduce, so first reduce, reuse and recycle basically. So we have to go through all these things. Okay. और इसके साथ साथ एक चीज और आ गई है कि हमें अपने वाटर की रिसोर्सेज को रीइंफोर्स भी करने की जरूरत है। रीइंफोर्स कैसे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रेन होती है, हमारी सोसाइटी में रेन होती है पूरे एरिया में। अब उसका जो रन ऑफ होता है 90% वो चला जाता है, वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है और वो फिर आगे जाके कंजेशन होता है और वो फ्लडिंग करता है। तो हम उस रेन वाटर को किस तरह अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं? या तो हम बाद में उसको यूज कर सकें फॉर एग्जांपल इन टॉयलेट्स, या फिर उसको हम ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर दें। तो रीइंफोर्स करना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब के लिए हमें जरूरी है कि हम सबको इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो बेसिकली। हाँ। So sir, a simple question, is the government introducing something on this at the grassroots level in the schools or wherever? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी वो सब नहीं हो रहा है। ग्रास रूट लेवल पे स्पेशली स्कूल्स में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। और हम इस समय मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम 37 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किए हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम ऑन स्किल डेवलपमेंट बेसिक। अनफॉर्चुनेटली वाटर डोमेन में कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। एज इफ water can be managed by anybody and everybody. Of course it has to be managed by everybody, but then you have to provide certain skills to people who are dealing with water. चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे मैं आम नागरिक हूं और मेरे को जानकारी तो होनी चाहिए। तो इस तरह का एक प्रोग्राम होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ एनजीओस तो डेफिनेटली चलाते हैं एट देयर स्मॉल लेवल, बट एज ए नेशनल प्रोग्राम
गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ नहीं है अभी नहीं। जिसके बारे में मेरे ख्याल आगे होना चाहिए। और मैं आई अंडरस्टैंड, आपने बताया था अपनी सोसाइटी में, अपने आरडब्ल्यूए के लेवल पे आपने कुछ अपना इनिशिएटिव शुरू किए हैं इसमें। हाँ, आरडब्ल्यूए के लेवल पे हमने एक इको क्लब बनाया हुआ है। तो सर एक रिक्वेस्ट है on जी। behalf of my teammates and the Swayambhus who are our viewers, जी। अगर आप एक छोटी सी हैंडबुक हमें बना दें 2-3 पेज की, हाँ जो कॉमन मैन समझ सके और उसको लोग यूज कर सके अपने डेली यूज में, हाँ so then we'll publish it on our Facebook page so that people can download it and people can use it. बिल्कुल। At least let us do a beginning. We can give me 1 month because अब मैं थोड़े किसी प्रोग्राम में एंगेज हूँ और I will prepare that. Definitely Very it can good. be done. Thank you. It will be very easy. Sir, let me take this. नहीं, मैं आपको वाटर फुटप्रिंट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Sorry, that question got वाटर फुटप्रिंट्स जो है, it is a way of judging how much water you are using basically. Okay. And one has to be aware कि किसी भी यूज में हम लें, जैसे हम कॉफी पिए, पानी पिए, या हम कोक पिए, या हम कोई क्या पहन रहे हैं, या हम क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, हमें इन सब में ध्यान रखना चाहिए कि इस एक्टिविटी के वाटर फुटप्रिंट्स क्या हैं। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर हम 1 कप कॉफी पीते हैं, हाँ जी, तो एक्चुअली 1 कप कॉफी में हम 200 मिलीलीटर पानी नहीं पी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कितना पानी आप कंज्यूम कर रहे हो? 132 लीटर पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 1 कप कॉफी में। 1 कप कॉफी में मतलब 132 है या 140 है या 120 है, वो डिपेंड करेगा कि वो कॉफी कहाँ से आ रही है। आप अपने साउथ इंडिया की कॉफी को यूज कर रहे हैं, कॉफी बीन्स को यूज कर रहे हैं, या ब्राजील वाली कॉफी को यूज कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। इसी तरह आप अगर जो एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदते हैं, तो उसमें 7600 लीटर पानी लगता है। Sir, I think at the moment we are in calorie conscious stage. Yes. Little bit corporate level we have started learning carbon footprint. Yes. I think water footprint will have to come in very fast. It is and very I'm sure the way the youngsters today behave, yeah, if they start learning this, right, they will be able to actually take it forward very fast. So I think then probably very soon we might see a bottle and the label may also say that this is the water footprint of this. Yes, absolutely. I think that is very important. So I think that's a very good information that we are all getting. Yeah. And we will do some research and try and put in some more information on this on our Facebook so right, that people can understand what this is. Okay, very good, sir. Good. Sir, I'll actually take this opportunity to welcome some of my guests who have joined. Yes. So welcome Manjari ji, welcome Sangeeta ji, welcome Manjari Shukla, welcome Poonam Chauhan, welcome Deepa Soni ji, welcome Viresh ji, welcome Rohini Chitle, and there are so many. I'll take 1 or 2 questions from the users. Sure. Does the perspective of looking at hobbies or work change as you become a senior citizen? How easy or difficult it is to adapt to the change? Sangeeta ji is asking this. संगीता जी, अब मैंने तो आपको खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब हम हॉबी, जो भी हम हॉबी लें, मैं अब इसमें बिलीव करने लगा हूं कि हमें उसको थोड़ा बहुत समय अपने जो एक्टिव लाइफ या एक्टिव वर्किंग पीरियड होता है उस दौरान जरूर देते रहना चाहिए, उसको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। बचपन में जब हम बच्चे होते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग बेसिकली, अगर हम चाहें तो उस कहते हैं मिट्टी के उसको गोले को कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम थोड़ा परिपक्व होते जाते हैं और एक हमारे सर्टेन थिंकिंग और सर्टेन वे हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अब पेंटिंग करते टाइम इट बिकम्स वेरी कम्बरसम कि पहले मैं बैठ के पेंट्स बनाऊं, उसके बाद मैं पेंटिंग करना शुरू करूं, और फिर एक
थोड़ा एक लेयर ऑफ पेंट लगाया, उसके बाद में उसको सूखने दूं और फिर उसके बाद दूसरी लेयर लगाऊं, तो वो थोड़ा सा कुछ मेरी जो ट्रेनिंग जॉब वाइज ट्रेनिंग रही है, क्योंकि मैं क्विक रिजल्ट हमेशा में जरूरत रहते हैं, तो मेरे ख्याल जरूरी है कि हम हॉबीज को साथ साथ थोड़ा परस्यू करें, थोड़ा परस्यू करते रहें, ज्यादा टाइम ना भी दें तो कोई बात नहीं। One more question, Rohini Chitle is asking, जी, this is probably more of a personal question. जी. Do you think to write some articles over the experiences throughout in your life journey? Well, इच्छा तो है। मैंने एक दो जैसे क्लासेस भी ज्वाइन की हैं, हाउ टू राइट योर स्टोरी। अब एक्सपीरियंसेस, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस देने से तो मुझे कुछ ज्यादा लगता नहीं कि उसका कुछ फायदा है, लेकिन उन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए देने में शायद कोशिश करूंगा। तो एक काम तो आपको हमने आज दे दिया, वो तो आप हमें करके दे रहे हैं। बिल्कुल, एक तो आप दे दिया। Another question, what are the different methods students can contribute to what are the different methods students can contribute to conserve water and spread awareness? I think one of the method will be to circulate this manual that you are going to provide us. Yes, of course, that is very important. See, स्कूलों में जो है हम देखते हैं कि जितने भी पानी के नल होते हैं वो एक बार को जो खोल दिया तो वो खोला छोड़ा रहता है बेसिकली। तो हम बच्चों को उसकी अवेयरनेस दिलवाएं। उसकी अवेयरनेस देने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और ये एक्सपेरिमेंट हमने पंजाब के एक स्कूल में किया था, जिससे मैं थोड़ा सा एसोसिएट रहा हूँ, कि जो पानी का नल चलता है उसके बाद हमने उसके वो इकट्ठा 4-5 नल लगे होते हैं एक ही जगह, और फिर उसके बाद वो इकट्ठा होके नाली में चला जाता है। तो नाली में भेजने की बजाय हमने उसको एक ड्रम में ड्रम में रखवाने के बाद हमने कहा कि देखिए अब सारे दिन में हमने इतना पानी वेस्ट हो गया, चलो इसको हम फिर से रीयूज करते हैं। उससे हमने डब्बा ले लेके और फिर हमने प्लांट्स की वाटरिंग करवाई उनसे। तो इस तरह के हम एक्टिविटीज अगर कराएं। दूसरी एक और मैं 2 मिनट लेता हूं, हर विद्यार्थी, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आपका पानी कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। 99% लोगों को, बड़े लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि जो पानी वो पी रहे हैं वो पानी आ कहां से रहा है या उसकी जर्नी क्या है बेसिकली। उसके साथ ये पानी जाएगा कहां, उन्हें ये भी नहीं पता होता। अगर हमें ये अवेयरनेस हो जाए कि ये पानी कहां से आ रहा है और ये कहां जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उस प्रोसेस में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Rohit is asking, now he is a young entrepreneur, is there a strong requirement and potential for startups in water domain? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें वाटर डोमेन में अगर स्टार्टअप करना है तो उस स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव उसका फाइनेंस है, मनी है, ठीक है, फाइनेंस आपको उस स्टार्टअप को चलाने के लिए जरूरत है ही हमेशा, लेकिन अगर जो एम है कि हम उससे कुछ गेन करें तो वो इन द लॉन्ग रन इट विल बी नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। बट अगर जो उसका एम टू सर्व द सोसाइटी है तो देयर इज नथिंग लाइक ए स्टार्टअप इन द वाटर डोमेन। But how about innovations? How about innovation? Innovations तो बहुत हैं। नहीं, there is a startup. So what I'm trying to say, there is a startup which develops, let's say, it develops a small device which can be fitted in the water tap in the house and saves water. Yeah. See, basically, I'm just giving a very broad example. हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक किया। मैं फिर वही कहूँगा कि वाटर सेक्टर में इनोवेशंस की कोई कमी नहीं है। जहां इनोवेशन होनी चाहिए वहां पे अभी कैपेसिटी नहीं है लोगों को करने की। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी
यही है, और ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में भी है, और वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में भी यही है बेसिकली, कि वहां पर हमारे टेक्निकल कैपेबिलिटीज थोड़ी कम है, तो हमें वहां ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि हमें एक कॉमन मैन को वो चीज बतानी है। आपने जो वाटर फॉसेट में वो स्प्रेयर लगाने की बात कही ना, वो अवेलेबल है, देयर आर सो मेनी अवेलेबल। I took a very broad example, but नहीं, लेकिन अब मैं अगर जो किसी के घर जाता हूँ, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी सोसाइटी में शुरू करना चाहते थे। उन्होंने मतलब फ्रॉम हिज फंड्स ही सेड कि मैं 1000 ये खरीद रहा हूँ और मैं सबको ये बांटता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सबको बांट दिया अपनी सोसाइटी में, और उसके बाद जिन जिन्होंने लिए थे उन्होंने उनके जस्ट नाम नोट किए और आप ले जाइए, कोई पैसा नहीं चार्ज किया उन्होंने। फिर उन्होंने उन सबके घर गए, हाँ उन सबके घर गए, उन्होंने पूछा कि आपने लगाया, तो उसमें से कुल 10% लोगों ने लगाया था। रीजन क्या था कि चूड़ियां उसकी जो हैं वो डिफरेंट तरह की थी, ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ी तो एफर्ट हर एक इंसान को करनी पड़ेगी ना, तो वो अवेयरनेस नहीं है बेसिकली। जी, one last question I'll take because we are running out of time, I guess. जी, We always wonder when the earth has such a large body of water, why do we talk about water scarcity? And is it expensive and a lengthy process to convert sea water to drinking water? Yes, presently still it is expensive to really desalinate that water and start supplying it. Of course, to some extent, अगर जो हम इसको थोड़ा सा और कम कर दें, कॉस्ट अभी जो है, to some extent इंडस्ट्रीज में तो यूज हो सकता है वो, लेकिन फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस या जो इंटीरियर के विलेजेस या इंटीरियर के सिटीज हैं, मान लीजिए बॉम्बे को ही आप एग्जांपल ले लीजिए, तो मुंबई के लिए आप डिसैलिनेट करके उस पानी को नहीं यूज कर सकते। इसके साथ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी जुड़ी है, वो ये है कि जो रिच सैलिन वाटर अवेलेबल आपको रह जाएगा, उस रिच वाटर को आप कैसे डिस्पोज ऑफ करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब वो काफी जहरीला पानी होता है जो बचेगा आपके पास। मेरे को एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आती है। जी जी। दुबई, which is such a modern city, जी, they made the city and they forgot to put up a sewage system. Right. So now what happens there, even today, in the night at 2 o'clock, from these water septic tanks, the tankers come, they take the water and then go and put it in a reservoir somewhere far away from the city. Yeah. But then there they have a very efficient plant which actually cleans it, and then that water is used to serve the entire greenery of Dubai. All right. Because they have so many fountains, so many gardens, and etc. Correct. So that entire water, sewage water, is actually used for that. That's true. So that's what it is. Well, I think we had more time, but we don't have time. One last question. Yeah. You have had such an illustrious career. You have worked for almost 44 years in the service. What inspires you? Or who is your inspiration? Well, to be frank, government में जब आप serve करते हैं, because government is working for the benefit of the people basically. Yes. So when you are serving in the government, you are serving the people. If you are serving up to the amount you are paid for, then you are doing your job properly. When you are doing slightly more than that, then that is a contribution to the society basically. So if you are able to put your 100%, then you are able to really do wonder for the society. इसमें मेरे दो एग्जाम्पल रहे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। सबसे पहला तो मेरे अपने फादर थे, जो he was also an executive engineer in Central Public Works Department. तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिस तरह वो काम के प्रति अपने संलग्न रहते थे और डेडिकेटेड थे, वो मुझे बहुत भाता था।
और दूसरे इंसिडेंटली आपके फादर। आपको याद है जब आपके फादर से पहली बार हम मिले थे रुड़की में, रुड़की में। तो जिस तरह के डेडिकेशन से वो इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में सेवा थे, उस समय उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए, किस तरह ही इज सर्विंग so many people by working in that irrigation department, so that inspired me to be in the water sector. Otherwise मैं आपको बता दूं कि IIT रुड़की में आने से पहले मैं 1 साल IIT कानपुर में पढ़ चुका हूं, और वहां पर मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था, और मैं वो छोड़ के, क्योंकि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी थी, और मैं रुड़की आया था, और रुड़की में फिर मुझे इरिगेशन सेक्टर में जाना है या वाटर सेक्टर में जाना है, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि आपके फादर ने मुझे इतना इंस्पायर किया। ही वाज सच एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ही वाज प्रेज्ड बाय एवरीबॉडी। मतलब उनके पीछे भी लोग बात करते थे, क्योंकि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में और भी लोगों को जानता था, तो वो जिस तरह की बातें आपके फादर के बारे में करते थे, तो उससे मुझे बड़ा इंस्पायर मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इरिगेशन और वाटर सेक्टर में ही काम किया जाए। So thank you, Avinash. It has been a great pleasure to have you here on board. मेरे viewers के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Thank you, Anil. It has been a great pleasure to talk on this platform. Message तो मेरा फिर वही है कि since water is everybody's business, so each one of us has to be aware where we are getting the water from, and where the water which we are using is going, and how it is going to change its use later on. और जितना कम हो सके उतना पानी हम इस्तेमाल करें। अपने वाटर फुटप्रिंट्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। इसके बारे में अगर स्वयंभू चाहेगा तो हम वाटर फुटप्रिंट्स के बारे में कुछ लेटर ऑन आर्टिकल लिख के, नहीं, रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी डाल दी है, रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी डाल दी है। जी हाँ, तो वो हम नहीं सकते हैं। बिल्कुल करेंगे वो। Thank you. So it has been a great discussion. So thank you once again, and all the Swayambhus, we will join again next Sunday. And next Sunday we have some very interesting topic coming in. We are bringing in a person who is an expert in Swar Yoga. You must have heard yoga. Now Yes. we'll talk about Swar Yoga, which is actually the art of breathing. How you can improve your health by breathing. So that look forward to that. Meet you again next Sunday I think it is 5 p.m. You will get the intimation in time. Thank you once again. Thank you, Avinash ji. Thank you all. Jai Hind. Jai Hind.